محمد مظہر کامل ہے حق کی شان، اس کے کردار کے مطابق، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے کردار کے مطابق ہم بھی اپنے آپ کو لے چلنے کی کوشش کریں اور اسی راستے پر چلیں، یہی کسی کی سچی محبت ہے۔ ایگو نارمل کر دیجیے بھیا، ایگو نارمل کر دیجیے۔ حضرات، ہم اسلام کے مشن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد اچھے خاصے، ویسے بھی ہمارا یہ علاقہ ایجوکیٹڈ علاقہ ہے، الحمدللہ پڑھا لکھا علاقہ ہے اور بہت ہی سمجھدار ہے۔ اسلام کا مشن ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہ تحریک اس مشن کو، تو یاد رکھیے گا کسی کے مشن کو اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مشن ہو تو اس مشن کو آگے لے چلنے کے لیے کچھ اصول، کچھ قانون، کچھ ضابطہ ہوتا ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مذہب اسلام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مذہب اسلام کے جھنڈے کو بلند بالا کرنا چاہتے ہیں، تو اس مشن کو آگے لے چلنے کے لیے ہمارے پاس کون سا ضابطہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس کون سے اصول ہیں، کون سا قانون ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کی تعلیمات پر عمل کریں کہ ہمارا مذہب بھی آگے بڑھتا رہے، ہمارے دین کا مشن بھی آگے بڑھتا رہے اور اسی کے پیچھے پیچھے ہماری بھی ترقی ہوتی رہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مشن کو بڑھانے کے لیے، مذہب اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، انبیاء کرام کو بھیجا، رسولان اعظام کو بھیجا، اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا، صحابہ کی جماعت کو پیدا فرمایا، اور ہمیں ان تمام چیزوں کو، شخصیتوں کو رہبر اور رہنما بنا کر کے پیش کر دیا کہ اگر ہم اسلام کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرمایا اور اسی قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا طریقہ سب سے اچھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارا سب سے اچھا کوئی لیڈر ہے، کوئی رہبر ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ معلوم ہوا اگر ہم اس دین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی عقیدت اور سچی محبت ہے، تو اپنے زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو پر سیرت مصطفیٰ کو شامل کرنا ہوگا، تعلیمات مصطفیٰ کو شامل کرنا ہوگا، کردار مصطفیٰ کو شامل کرنا ہوگا۔ یہی وہ قانون، یہی وہ اصول اور ضابطہ اور طریقہ ہے جس کو اپنانے کے بعد صحابہ نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جہاں بھی گئے ہیں، جس ملک کو کوئی کبھی پتہ نہیں کر پایا ہے، مصطفیٰ کی صفت و کردار کو لے کر کے صحابہ نے ایران، مصر جیسے ملک کو فتح فرما لیا ہے اور دنیا کو پیغام دے دیا ہے۔ سنو، اگر تم دنیا کے ظالموں کا سر کچلنا چاہتے ہو، اسلام کا جھنڈا بلند و بالا کرنا چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق چلو، تم بھی آگے بڑھتے رہو گے اور تمہارا مشن بھی آگے بڑھتا رہے گا، اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند و بالا ہوتا رہے گا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ آج جھگڑا ہو رہا ہے کس بات کو لے کر؟ آئی لو محمد، ٹھیک ہے، ہمیں اس پر زیادہ کلام نہیں کرنا، جھگڑا اتنا ہے میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ سنیے، دیکھیے، لپڑی چپڑی بات کرنا آتی ہوتی نہیں، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے پہ، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، سمجھ گئے؟ آئلہ محمد سب پریشان، اب ایک ایشو بن گیا ہے پوری ہندوستان کے اندر، اس پہ ہم کلام نہ کر کے اپنی برادری، اپنی قوم سے مخاطب، توجہ چاہیے۔ آپ
दावा कर रहे हैं, दावा, मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, इंशाअल्लाह क़यामत तक करता रहूंगा। अहले जेल की दुआएं चाहता हूँ, करता रहूंगा। और कभी बोलते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये भी मोहब्बत की दलील है, हम नारा लगाते हैं। कभी आप कहते हैं अपने नबी के नाम पर अपना सर कटा देंगे, अपनी जान उठा देंगे, अपना घर बार उठा देंगे। अगर हमारे सीने गोलियों मुखालिफ की गोलियों से छलनी भी हो जाए तब भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना नहीं छोड़ेंगे, आइला मोहम्मद कहना नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये हमारा आपका दावा है, चैलेंज है, ये दावा है। अगर आपसे इसका प्रूफ, इसकी दलील मांगी जाए तो कौन सी दलील आपके पास है? आपके पास इसकी दलील क्या है? आप कह रहे हैं हमने मान भी लिया, बिल्कुल अपने नबी से मरते दम तक प्यार करेंगे, जान जाए तो चली जाए, घर बार जाए तो चला जाए, एक दिन ही सैकड़ों औलाद की कुर्बानियां देनी पड़े दे देंगे, लेकिन अपने नबी का नाम लेना है, क़यामत तक नाम लेते रहेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहेंगे, नबी को जश्न मनाते रहेंगे। लेकिन अगर ये सवाल खड़ा हो जाए इस दावे की दलील क्या है आपके पास, क्या दलील? तो शायद यहाँ पर हम मैदान छोड़कर पीछे हट जाएंगे। हर दावे की दलील होना चाहिए। हम कोर्ट में अधिकारी के सामने जाएंगे, दावा करेंगे ये हमारा है, तो आपसे प्रूफ मांगेगा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? इस दावे की कौन सी दलील है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्रूफ दिखाओ। अगर आपने प्रूफ दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया, तो फैसला आपके हक में इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन दलील और दावा नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं है, तो वो जागीर आपके हाथ से चली जाएगी और आपको गेट आउट कर दिया जाएगा, एग्जिट निकालो ही। अब तवज्जो चाहिए, हमने दावा कर दिया हम अपने नबी से प्यार करते हैं, आपके पास दलील क्या है? दलील क्या है? ये ज़बानी हो गया कि अपने नबी से प्यार करते हैं, लेकिन याद रखना असली मोहब्बत ज़बान से नहीं बल्कि किरदार से साबित की जाती है, अमल से साबित की जाती है। अगर अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है तो ज़बान से कहने के साथ साथ अपने अमल से दुनिया वालों को बताओ हम नबी के हाथ में हाथ दे चुके हैं, हमने नबी से प्यार किया है, प्यार करते हैं, तो हमारा जो भी तरीका होगा किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा का तरीका होगा। हम पानी पिएंगे, मुस्तफा के तरीके में पिएंगे, खाना खाएंगे तो मुस्तफा की सीरत के मुताबिक, कपड़ा पहनेंगे मुस्तफा की सीरत के मुताबिक, अपने बच्चों को मुस्तफा की सीरत में कर सकेंगे, अपनी जिंदगी के हर कोशे में सुन्नत मुस्तफा को शामिल करेंगे। कसम खुदा की, जिस दिन सीरत के लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया जमान होकर पुकारेगी आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, पूरी दुनिया के साथ पुकारेगी। इस कायनात के अंदर कोई ऐसी जात है जिससे सब प्यार करें, वो एक जात आमिना के लाल की जात है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा क्या ज़बान से कह दिया आइला मोहम्मद, पानी पीता है तो नबी को भूल जाता है। आइला मोहम्मद में जब नबी से प्यार है और जब पानी पीता है आशिक तो अपने नबी को भूल जाता है। फिर किसका तरीका? जो आइला मोहम्मद के नाम पर हमको तंग कर रहे हैं उनके तरीके के मुताबिक पानी पी लिया, मेरा आइला मोहम्मद। आइला मोहम्मद अगर ये सच है आपका तो पानी पीकर भी बताओ आइला मोहम्मद, बैठ करके दाहिने हाथ में ले करके 3 सांस में पानी पी कर बताओ आइला मोहम्मद। खाना खाओ आइला मोहम्मद कह रहे हैं, तबर्रुक ले लिया, हुजूर के नाम का तबर्रुक, गौस के नाम का तबर्रुक, हुसैन के नाम का तबर्रुक, ख्वाजा के नाम का तबर्रुक, आइला मोहम्मद। और तबर्रुक को खड़े खड़े का किसके? नबी के दुश्मनों के मुताबिक जो नबी के नाम को मिटाने में लगे हैं और नबी के नाम लेवा को मिटाने में लगे हैं और उसके तरीके पर खाना खा रहे हैं। फिर कहते हैं आइला मोहम्मद, नमाज़ें छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं आइला मोहम्मद, फजर गायब है, आइला मोहम्मद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ज़ोहर गायब है, आइला मोहम्मद, असर गायब है, आइला मोहम्मद, मग़रिब गायब है, आइला मोहम्मद, ईशा गायब है, आइला मोहम्मद, कुरान को अल्लाह
हमें हम तो झूठे साबित हो। यही वजह है हमारे नारों में अब दम नहीं है, वरना एक बार नारे तकबीर लगता था मक्के की मक्के के अंदर तो सारी वादियां पूरे मक्के के अंदर गूंज होना था। दुश्मन हल्ला उठते थे, लड़ जाते थे, क्योंकि नारा वो लगा रहा है जो ये भी कहता है आई लव मोहम्मद, और अपनी जिंदगी के हर गोशे में नबी की सीरत को शामिल किए हुए हैं और अपनी जिंदगी को नबी के नाम पर सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। वो जो कहता है आई लव मोहम्मद, तो सारे मिल उसके साथ कहते हैं आई लव मोहम्मद। अपने आप को सही साबित करो, प्रूफ करो अपने आप को, नमाज़ें पढ़ के बताओ हमें अपने नबी से प्यार। नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तुम नमाज पढ़ोगे मुझे खुशी मिलेगी, तुम नमाज पढ़ोगे मुझे राहत मिलेगी, तुम नमाज पढ़ोगे मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अब अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नबी को तकलीफ होगी, फिर कहेंगे क्या है आई लव मोहम्मद। दावा सच्चा है कि झूठा, फैसला आपके हाथ में है। नबी ने कुरान दिया है, इस कुरान को मजबूती के साथ थामे रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान से कितनी मोहब्बत है, अलमारी की जीनत बन गया है। प्यारे मुसलमानों, किस किस चीज को गिनाऊं? डॉक्टर इकबाल ने कहा है हमें करनी है शहंशाहे फतह की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से और दुनिया में हुई है बेकरार अपनी। अगर तुम्हें इस्लाम के झंडे को बुलंद वाला करना है, इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाना है, तहरीक मुस्तफा को आगे बढ़ाना है, तो ज़बान से कहने की जरूरत नहीं है। सीरत मुस्तफा को अपना लो, तालीमात मुस्तफा को अपना लो। जिस दिन सीरत मुस्तफा के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरने लगेगी, पूरी कायनात को अल्लाह हमारे कदमों में डाल देगा, पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। जब तक ज़बान का दावा सच्चा नहीं होगा, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये महफिल है, अपनी बात को समेट दो, खत्म कर दो। गौसे पाक के नाम से हमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत है। गौसे पाक ने अपने लाला जान से मोहब्बत की, नबी से मोहब्बत की, पूरी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुताबिक गुजारा। कभी एक वक्त की नमाज ना छूटी, कभी रोजा ना छूटा, कभी उनकी तिलावत ना छूटी, कभी जो है शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा, शरीयत के खिलाफ कभी एक लफ्ज़ बोलने में नहीं। उन्होंने साबित कर दिया हाँ हमें अपने नबी से प्यार है, तो नबी की सीरत के मुताबिक चलेंगे। पूरी जिंदगी गुजार दिया। अल्लाह ने वो मकाम मर्तबा में अता फरमाया कि जब तक जमीन जुहू कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनकी ताज़ीम करती रही, उनका नाम लेती रही। आज उस जमीन के नीचे आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के आजकल गौसे आज़म उनकी महफिल सजा रहे हैं, उनकी महफिल सजा रहे हैं, उनके नाम का मंगल गा रहे हैं। ये क्या है? उन्होंने सही सही नबी की सीरत के मुताबिक गुजारा है। हम भी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार फरमाते हैं, तो गौसे पाक की तालीमात पे अमल करो, उनकी सीरत पे अमल करो, उनके किरदार को अपनाओ, उनकी अमली जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाओ। इंशाअल्लाह दावे के साथ कहता हूँ 100% इंशाअल्लाह आपके मिशन को आगे ले चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। कोई लाख साजिश करे, चाहे जितनी प्लानिंग बनाए, कितनी भी योजनाएं बनाए, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उसकी तमाम साजिशों को अल्लाह नाकाम करना देगा। और जो सीरत मुस्तफा को लेके चल रहे हैं, अल्लाह ने हर महाज पर कामयाब और फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। गौसे आज़म की मोहब्बत नमाज पाबंदी के साथ, नमाज पढ़ने का नाम गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत है, रोजा रखने का नाम गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत है, और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत है। अगर हम इन तमाम चीजों के साथ साथ अमली तौर पर भी, प्रैक्टिकली तौर पर भी मैदान में जिस दिन आ जाएंगे, तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो पावर वाली हो, चाहे सुपर पावर वाली हो, इंशाअल्लाह हमें रोक नहीं पाएगी। क्योंकि हमारा हाल तो ये है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में तौरात लिए खोले हमने, ये हमारा हाल है। आप भी हो जो तराहीम सा ईमान पैदा, आप भी हो जो तराहीम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़ दूसरा पैदा, चाहे जो हो तो आलम में निकला हुआ भरता कर सारे आलम में सिर्फ को नबी खज़रा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको औलिया किराम से सच्ची मोहब्बत